فرصت کے لمحات ہے نعمت خدا کی جان لو، کر لو ان میں نیکیاں جنت کا یوں سامان لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین بار درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی زندگی میں رشتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ رشتے اگر نہ ہو تو زندگی ادھوری رہ جاتی ہے۔ رشتے نہ تو بنانا آسان ہے اور نہ ہی توڑنا۔ رشتوں کے بغیر زندگی بے سکون محسوس ہوتی ہے۔ سمجھدار شخص وہی ہے جو رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، رشتوں کو نبھانے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، رشتے اسی وقت مضبوط ہوتے ہیں جب اپنوں کی خامیوں کو نظر انداز کر کے ان کو اسی طرح اپنایا جائے جیسے وہ ہیں۔ مسائل ہر جگہ اور ہر گھر میں ہوتے ہیں، مگر ان مسائل کا ایک دوسرے کو الزام دینے کی بجائے ان کا حل نکالا جائے، ورنہ یہ مسائل رشتوں میں دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں لڑنے، چیخنے چلانے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی بجائے ان معاملات کو نرمی، پیار محبت سے حل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیار محبت سے رہ کر رشتوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فرصت کے لمحات میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فرصت کے لمحات میں رشتوں کو مضبوط کریں۔ رشتے مضبوط کیسے ہوتے ہیں، رشتے کمزور کیسے ہو جاتے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے ہم حاضر ہوں گے آپ کے پاس، کیونکہ سوالات ہوں گے ہمارے اور رائے ہوگی آپ کی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرصت کے لمحات ہے نعمت خدا کی جان لو، کر لو ان میں نیکیاں جنت کا یوں سامان لو۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ فرصت کے لمحات میں جو ہمارے رشتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، رشتوں میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان رشتوں کو فرصت کے لمحات میں مضبوط کیسے بنایا جائے؟ اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم جو اپنے بچوں کو جس طریقے سے آج کے دور میں ٹف دور چل رہا ہے نا، اور جس طریقے سے ترقی یافتہ دور چل رہا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں اور بہت اچھے ان کو گھر میں میڈیا سسٹم دے رہے ہیں، کمپیوٹرز لا کے دے رہے ہیں، موبائل دے رہے ہیں، تاکہ ہمارے بچے کسی نفسا نفسی میں نہ رہیں اور یہ آج کی ملک کی بھاگ دوڑ میں آگے رہیں۔ مگر ہم جو ہے ان چیزوں میں لگا کے رکھ رہے ہیں اور رشتوں سے دور کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی تربیت ہم رشتوں میں بھی کریں، بجائے ایجوکیشن سے اور یہ میڈیا کے دور سے سوشل میڈیا میں ہم ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں، تو ہم ان کو رشتوں میں بھی آگے لے کے جائیں، اور اس کے اندر ہماری خواتینوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ مگر آج کل کی خواتین معذرت کے ساتھ وہ بولتی ہیں یہ خالہ ہے، یہ نانا ہے، یہ نانی ہے، اور یہ ماموں ہے۔ بہن بیٹی سمجھ رہی ہو، اس بات کو غلط نہیں سمجھنا۔ زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو خالائیں پال رہی ہوتی ہیں یا ماموں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اصل میں چچاؤں سے تو لڑائی چل رہی ہوتی ہے، نہیں چچا تمہارے ایسے ہیں بیٹا، چچا تو اپنے بچے دیکھتے ہیں۔ تو یہ رشتے ہمیں اب یہ باتیں ختم کرنی چاہیے۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے تعلیم کی تو ضرورت ہے، اچھی نوکری، مگر ہمیں رشتوں کی بھی ضرورت ہے۔ کام وہی آتے ہیں ہمارے رشتے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ کوئی خوشی یا غمی ہوتی تھی تو ہم خوشی کے موقع پر ایک دو دن اپنے برادری میں یا اپنے بڑوں کو جہاں ہمیں دعوت ملتی تھی
تو ہم جا کے ٹائم دیتے تھے، جس سے سارے بزرگ اور بڑے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، جس میں بچے بھی آ جاتے تھے تو ان کو بھی ٹائم دیتے تھے۔ لیکن آج کے ماحول کے حساب سے کہ وہی شادی وہی غمی جو ہے وہ ہماری شادی حال تک نکل گئی ہے، جہاں پہ بڑے لوگ اگر آتے بھی ہیں تو وہ کسی بھی اپنے بچے کو یا برادری کے بچے کو یا اپنے رشتہ داروں کو پورا ٹائم دے نہیں پاتے۔ اس سے تو خیر انکار نہیں ہے کہ جو آج کل ملٹی میڈیا اور جو سسٹمز اور بچوں کو ہم ہر والدین کی ایک مطلب آج کل خواہش بنتی جا رہی ہے کہ ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ واقعی صحیح بات ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بن جائے۔ تو اچھا انسان بنانے میں سب سے اہم کردار تو واقعی جو ہے مین کردار جو ہے وہ والدہ کا ہوتا ہے، کیونکہ والد تو صبح چلا جاتا ہے کام کے لیے اور شام کو آتا ہے، اور وہ دن بھر جو لک آفٹر کرتی ہے وہ والدہ کرتی ہے۔ اب اسکول میں بھی جو سسٹم چل رہا ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ والدہ بھی آج کل ملٹی میڈیا سے جوائن ہو گئی ہے، اسے بھی اپنی مراحت کا احساس زیادہ ہے، بچوں کا احساس کم ہے۔ تو اب اس وجہ سے جب ہمارے والدین جب ہم اپنے بچوں کا لحاظ نہیں کر رہے، خیال نہیں کر رہے، تو ظاہر سی بات ہے بچوں میں خامیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ رشتے جو ہے نا وہ اس لیے کمزور پڑ رہے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی اولاد ہوتی تھی وہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانتی تھی، اپنے ماں باپ جو بھی اس کو ماں باپ کہتے تھے جائز طریقے وہ اس پہ عمل کرتی تھی۔ اب ہر شخص جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں الگ رہوں، میرا گھر الگ ہو، پہلے فیملی کے ساتھ رہتے تھے تو جوائنٹ فیملی۔ ہاں جوائنٹ فیملی، اس کی وجہ سے بڑے مسائل جو ہے نا حل ہو جاتے تھے۔ مطلب یہ جو موبائل نکلے انہوں نے کباڑہ کر دیا، یعنی اچھے بھی ہیں لیکن اکثریت بچوں کے ہاتھ میں آتے ہیں تو وہ جو ہے مقصد ہے کہ گم ہو جاتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ سر اس کی وجہ یہ کہ ہم جو ہیں اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اور سر جو ہے آج کل کا جو میڈیا ہے سر اس میں بہت سے لوگ موبائلوں کے اندر، ٹی وی کے اندر، سب جگہ پوری رات جاگ کے وہ کرتے ہیں، دین کی طرف سر کوئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے سر یہ مسئلے مسائل ہیں۔ اس میں جو میری ناقص رائے ہے یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داری برادری کو اگر ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے ٹیلی فون پہ رابطے کر کے ان سے ٹائم لے کے ان کے پاس جا کے ان کی خیر خواہی کے بارے میں، ان کی بیماری کے بارے میں، کوئی مسائل ہوں تو اس کے بارے میں ان سے جا کے بیٹھ کے ملاقات کریں گے، تو پھر اس طرح ان کو بھی ہمارے ہاں اپنے گھر میں بھی آپ بلائیں اور ان کے گھر خود جائیں، اور اس طرح جانے آنے سے ایک دوسرے کے مسائل کا بھی پتہ ہوگا اور انشاءاللہ قربتیں نزدیک ہوں گی، دوری نہیں ہوگی۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس سے زیادہ محبت کی جاتی ہے، اور جو غریب ہے اس سے محبت نہیں کی جاتی۔ آج کل یہ موبائل فون چل رہے ہیں، ایک الگ گھر میں بیٹھتا ہے، کوئی الگ بیٹھتا ہے، پہلے سب مل جل کے بیٹھتے تھے، آج کل موبائل فون ہر بچے کے ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، وہ سب الگ الگ بیٹھے رہتے ہیں، اپنے دیکھتے رہتے ہیں موبائل فون، ایک دوسرے کی پہچان نہیں ہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے۔ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ آج کوئی رشتہ دار نہیں رہ گیا، بس سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس کے بارے میں یہی عرض کروں گا کہ پہلے زمانے میں جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ رشتوں کو لے کر چلتے تھے، نبھاتے تھے، چھوٹوں کو بڑوں کو سب چیزوں کو ان کے حساب سے ترجیح دیتے تھے، لیکن آج کل بڑے ایسی بات ہے وہ اپنا کردار نہیں نبھا پاتے، جس کی وجہ سے رشتے جو ہے جس طرح چلنا چاہیے وہ اس طرح سے نہیں چل پاتے ہیں۔ حضرت آج کل کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کا یوز بہت زیادہ ہے اور لوگوں کے پاس ٹائم ہے نہیں آپس میں بات کرنے کے لیے۔ اب گھر میں بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، موبائل لے کے الگ الگ جو ہے وہ ہر کوئی اپنے موبائل پہ بزی ہے، کچھ جو ہے وہ دین کی تعلیم کی کمی ہے۔ اب بہت بڑا حال ہے، سگا بھائی سگے مطلب رشتہ دار دور ہوتے ہیں، کسی سے ملو تو وہ بھی، ہم تو کوشش کرتے ہیں امیر اہل سنت کی تربیت کے مطابق کہ جو رشتہ دار نہیں ملتے آپ جا کے خود ملو۔ وقت تو اس لیے تھی کہ بھائی چارہ تھا بہت، اب اپنی اپنی صفوں میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں لوگ اور اپنی اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں لوگ۔ فرصت کے لمحات ہے نعمت خدا کی جان لو، کر لو ان میں نیکیاں جنت کا یوں سامان لو۔ آپ یہ بتائیے کہ بزرگ افراد جو ہوتے ہیں، بزرگ ہمارے معاشرے کے، یہ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بزرگ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے جو
उनसे छोटे जो हैं या मतलब बेटे हैं या पोते हैं या नवासे हैं या जो भी हैं, उनको बिठा के उनके साथ मतलब गुफ्तगू करें, उनको बताएं कि ये आपका ताया है, ये आपका चाचा है, ये आपका ये ताया का भाई है। तो अगर बताएंगे उनको मतलब ये होगा कि ये रिश्तों की पहचान होगी। दूसरी, जब वो बड़े होंगे तो फिर अपने छोटे, जब उनके बच्चे आएंगे तो वो उनको बताएंगे। ये आज से 20-30 साल पहले, हम भी, मेरी उम्र भी तकरीबन 54 साल है अभी, तो हमारे ये दादा वगैरह जिस तरह लोग थे वो हमें याद है। तो उस टाइम ऐसी बातें होती थी, बिल्कुल गलती इंसान से होती है, चलती आ रही है शुरू से लेकर। वो लोग वाकई बैठाते थे, अगर 2 बंदों की गलती है वो उनको बैठा के समझाते थे, तो वो लोग उस टाइम मानते थे उनकी बड़े बूढ़ों की बात को, वो ख़त्म हो जाती थी। इसमें बुज़ुर्गों को ये चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में जो अमली उन्होंने ज़िंदगी जो गुजारी है, वो अपने जो छोटे उनसे हैं या रिश्तेदारी बरादरी में हैं, उनको एक जगह बैठा कर उनकी मतलब है कि बात को सुने गौर से, और सुनने के बाद फिर तासरात आपने दें कि भाई ठीक है, इससे छोटे से गलती हुई है तो कोई बात नहीं, आपका भाई है, इंसान से हो जाती है गलती अल्लाह पाक भी माफ़ करता है, आप भी भाई को माफ़ करते हैं और अपने गले लगाएं। ये इस तरह जो है ना, आप उसको करीब लाएंगे और उसकी दावत करेंगे, उसके बच्चों का ख्याल करेंगे, तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला उसकी जो दूरी है ना वो नज़दीक हो जाएगी और वो भी आना जाना शुरू कर देगा। बुज़ुर्गों का कहना मानना चाहिए, उनकी बात पे अमल करना चाहिए, वो इंशाल्लाह कामयाबी है। बड़ों को तो बोलते हैं ये पागल हो गए हैं, बोलते हैं इनका दिमाग जो है वो ख़राब हो गया है। वो बच्चों बड़ों की तो आजकल बात मानते ही नहीं हैं। जो आजकल बच्चे जो होते हैं ना, वो सब अपनी अपनी करते हैं। ये उस टाइम सुनते थे, अब सुनता कोई नहीं है। अब बड़ों के से मशवरा ही कोई नहीं लेता। तलीम भाई हम पढ़े लिखे बाबे, इनको क्या पता है, वो पुराने बाबा जी दौर गए, अब नया दौर है, आपको क्या पता है। सबसे पहले तो बड़े आपस में मिल बैठे हैं, जो बड़े हैं वो आपस में बैठे हैं। फिर वो बच्चों को पहले ये होता था, बच्चों को बताते थे ये आपके चाचू हैं, मामू हैं, दादा वो हैं, ये आपकी खाला हैं, ये आपकी फूफो हैं। अब आज हम उनके घर जा रहे हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं, बेटा उनके पास आके बैठो। अच्छा, जाने और आने में दोनों को खुशी होती है। बिल्कुल सही बात है, यही चीज़ है। जाया जाए, आया जाए, फ़ोन किया जाए, जहाँ दूर हैं तो फ़ोन किया जाए, तो टाइम दिया जाए, बुलाया जाए। इसकी वजह ये हो सकती है यानी कि नफ्सा नफ्सी बहुत है, हर चीज़ में नफ्सा नफ्सी है। यानी कि कोई यानी कि बस यानी बड़ा अगर बुजुर्ग के पास कुछ निकल जाता ना बच्चा, कुछ सलाम दो, कुछ नहीं करता। यानी एक तो इज्जत और इस्लाम यानी ये नहीं है। इस्लाम छोटे बड़ा का वो चीज़ नहीं जो पहले थी ना, वो चीज़ नहीं है। आज ये चीज़ इसलिए ख़त्म हो गई है, एक तो बुज़ुर्ग जो है वो फैसलों को जो है वो उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते हैं। यानी कि वो जो उनको अमल करना होता है, वो बुज़ुर्गों के उस अमल को भी मतलब रद्द कर देते हैं। और कुछ मैं ये कहूँगा कि दीन से दूरी बहुत ज़्यादा हम लोग इस चीज़ में, हम जो इख्तलाफात हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो हम अगर दीन से वाबस्तगी होगी ना, तो हम इन चीज़ों को अल्लाह और अल्लाह की रसूल के लिए उस चीज़ों को छोड़ के और अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने वाले मामलात करेंगे। बुजुर्गों को यही करना चाहिए कि सबको आपस में इकट्ठा करके सबको समझाए कि ऐसा नहीं करो, आप लोग भाई बहन हो, साथ रहो। माँ बाप मर जाते हैं तो भाई लोग जो हैं, बड़े भाई लोग जो होते हैं, मकान भी बेच देते हैं जायदाद के चक्कर में। फैमिली के जितने मेंबर हैं सब परेशान हो, सब किराए में चले जाते हैं। जैसे हम हैं, हमारे भी माँ बाप नहीं हैं, हमारे भाइयों ने, बड़े भाइयों ने घर बेच दिया। हमारा बहुत बड़ा घर था नाथ कराची में, बेच दिया। फिर अब हम यहाँ से ससुराल की तरफ रहते हैं। सर बहुत सारे घर इस तरह के रह गए जहाँ बुज़ुर्गों को इस तरह से सपोर्ट किया जाता है, वरना बुज़ुर्ग तो ये समझ लें कि अब वो लगता है कि पुराना कोई चीज़ घर में सामान रखा हुआ है, अब वो हैसियत एक बुज़ुर्ग की रह गई है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी कि दीन से दूरी। अगर दीनी तालीम दिलाते अपने बच्चों को तो वो आज वो इनकी रिस्पेक्ट करते। अब दीन की तरफ देंगे तो दीन जो है वो बच्चों को उनकी तरफ लौटा देता है, लेकिन जब दीनी तालीम नहीं देते तो वो फिर बुढ़ापे में खुद भी पछताते हैं। बुज़ुर्ग जो होते हैं वो घर की रौनक होते हैं। वो भले बैठे हुए हों, लेकिन उनका अदब, एहतराम, उनका फ़ैसला सबके ऊपर लाजिम होता है और वो उनको मानते हैं। लेकिन जिस घर में बुज़ुर्ग ना हो तो वो उस घर में समझ लें कि रौनक नहीं है। बस अल्लाह पाक तमाम बुज़ुर्गों का साया सलामत रखे। हमारे पीर व मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का साया भी हम सब के सर पे दराज फरमाए और उनकी बरकतों से हमें नवाजे। कोई हदीस पाक सुना दे, कोई मकसद है कि भाई ये नेकी का काम है, ये करें। बच्चों को मकसद है कि दीनी तालीम दिलानी चाहिए, दुनियावी भी दिलाएं। ये बात नहीं कि दुनियावी नहीं दिलाएं, लेकिन दीनी ज़रूरी है। दूसरा ये है कि दावत इस्लामी है, तो मकसद है कि इसमें भी जाएंगे तो थोड़ी हमारी मालूमात मिलेगी। कता ताल्लुक़ करने का क्या नुकसान होता है और सिला रहमी करने के क्या फ़ायदे हैं।
जी जी बिल्कुल सही हमारे तमाम बड़े बुज़ुर्ग बहुत सारे अक्सरियत मैं ये कहता हूँ कि उनके कौलो फेल में तज़ाद है, और तज़ाद है जहाँ वहाँ मामलात ख़राब होंगे। जहाँ जो अमल अच्छा होगा वहाँ यकीनन उसका आपको समर भी नज़र आएगा, आपको उसका अंदाज़ भी नज़र आएगा, आपको उसका रिज़ल्ट भी नज़र आएगा यकीनी तौर पर। तो ये चीज़ है कि हम जो है ना, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे वालिदैन बहुत अच्छा। अब आप ये देख लें, जैसे मैंने बताया कि मेरी वाइफ जो है एक बहुत बड़े स्कूल में टीचर हैं, वहाँ टीचर्स को कितना बड़ा एक रुतबा दिया गया है, क्योंकि टीचर एक पूरी इफरादी कुव्वत को बना रही होती है, कौम को बना रही होती है, माशरे को बना रही होती है। लेकिन क्या है, बच्चे टीचर्स की भी अहमियत नहीं करते। हमारा जो माशरा है ना बहुत बिगड़ रहा है, और इसमें सबसे अहम किरदार हमारे घर का है, वालिदैन का है, और उसमें सब वालिद से ज़्यादा किरदार वालदा का है। हमारी भी वालदा ने हमें बहुत मारा, क्योंकि हम ज़ाहिर है स्कूल का टाइम हुआ नहीं, ज़रा से भी लेट हुए नहीं आए, पिटाई हुई, और स्कूल देर से आए, क्यों आए, तो पूछगछ होती थी। अब पूछगछ नहीं होती है, और अब बच्चे भी मतलब इतने शातिर, इतने मतलब तेज़ हो गए हैं कि वो हर लिहाज से वालिदैन को जो है ना, मतलब यूँ समझ लें कि डॉज दे देते हैं, झूठ बोल देते हैं। तो वालिदैन भी वहाँ मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अब वालिदैन ना छोड़ के आते हैं स्कूल, ना ले के आते हैं। वैन आई, वैन में चले गए, वैन से वापस आ गए, वैन को क्या हुआ, क्या बाहर में स्कूल में क्या हुआ, कुछ नहीं पता। वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, महीने बाद वालिदैन गए और बस ये देखा कि बच्चे का रिज़ल्ट क्या है। ये नहीं देखना कि अगर अच्छा कोई अगर टीचर उनके बच्चों की शिकायत कर दे तो वो उनको बुरा लगता है, तो फिर टीचर क्या करे। फुर्सत के लम्हात है, नेमत खुदा की जान लो, कर लो इनमें नेकियां, जन्नत का यूं सामान लो। जो रिश्तेदारियां हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं, फासले बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? आज के माहौल के हिसाब से कि वही शादी, वही गमी जो है वो हमारी शादी हाल तक निकल गई है, जहाँ पे बड़े लोग अगर आते भी हैं तो वो किसी भी अपने बच्चे को या बरादरी के बच्चे को या अपने रिश्तेदारों को पूरा टाइम दे नहीं पाते, जिससे उनको टाइम नहीं मिलता, जिस वजह से बच्चे फिर अपना वही 1 या 2 घंटे का फंक्शन होता है तो वो फिर उससे पिक नहीं करते पूरी बातें, या मतलब उनका मेल जोल जो है वो पूरा नहीं हो पाता। हमारे वालिदैन की कमज़ोरी होती है, देखें वो वालिदैन की कमज़ोरी होती है। मेरे बच्चे या इनके बच्चे, आपके बच्चे, अगर हम मजबूत है ना, वो बोलेंगे नहीं कि उससे नहीं मिलना। जो वालिदैन ने बोल दिया, बोल दिया, बल्कि वो तो ये कहेंगे, अगर हम नाराज़ होकर बैठेंगे कहेंगे नहीं आपकी वजह से हम रिश्ते नहीं ख़त्म करेंगे, चलो वो हमें लेके जाएंगे। ये हमारी तरबियत होगी ना। हम बच्चों पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जो बच्चों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो हमारे, देखें सारा कसूर मर्द का नहीं होता, सारा कसूर इसमें माजरत के साथ ख़वातीन का भी होता है। वो एहतराम करना बताया ना रिश्तों का। अगर मैं नाराज़ हूँ तो मेरी जो घर में एहलिया है वो बोले नहीं आप जाओ, आपका भाई है मेरे साथ। अगर वो मुझसे बात नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, आप तो जाओ, आप तो बैठो उसके बराबर में। जिंदगी है कितनी मुख्तसर, जिंदगी है कितनी मुख्तसर जिंदगी है। सारे लड़ाई झगड़ों में गुजार देंगे, फिर उसके नमाज जनाजा में जाके उसके खर्चे करेंगे, सोयम करेंगे, फिर क्या फ़ायदा। जब वो है तो जब उसके लिए जाके बैठ भी नहीं सके अस्पताल में, जब वो चला गया तो फिर उसके लिए भागम दौड़ी किस बात की, वो तो चला गया ना। बच्चों को जब बचपना होता है तो उसके बाद यानी दीनी तालीम भी दिलवाएं, और यानी नसीहत करें कि बड़ों का एहतराम करें, ख्याल रखें। मकसद है कि किसी को कोई मजबूरी है, कोई भी परेशानी है वो दूर करें। अब हमें नहीं है, मैं अपना कहूँ, दूसरों को छोड़ें, अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी उम्र हो गई है, लेकिन बड़ी उम्र के मकसद 17, 18, 20 साल की उम्र के जो है वो लिहाज भी नहीं रखते, उल्टे का डांट देते हैं। अल्लाह हम सब पे रहम करे। फुर्सत के लम्हात है, नेमत खुदा की जान लो, कर लो इनमें नेकियां, जन्नत का यूं सामान लो। आपने ये सुना होगा कि रिश्ते बनाना बहुत आसान है, रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल क्यों कहा जाता है? महंगाई और नफ्सा नफसी का दौर है, नफ्सा नफसी है, और मसलन मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन वगैरह हर बंदा इस दौर में लगा हुआ है, और कि मैं पैसे ज़्यादा कमाऊँ, टाइम ज़्यादा कारोबार को दूँ, दुकान को दूँ, बिज़नेस को दूँ, तो ज़्यादा जो ख्वाहिशें भी बच्चों की ख्वाहिशें कि ये पापा ये होना चाहिए, अबू ये होना चाहिए,
मामा ये होना चाहिए, बंदा फिर उस चीज़ में लगा रहता है, उसमें फिर वो रिश्ते उसकी आंखों के आगे एक पट्टी सी चढ़ी हुई है, एक आगे से वो उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, सो इस चीज़ के सुबह जाना है शाम को आना है, बस नफसा नफसी है, बस वो इस दौड़ में है कि किसी तरह कैसे करके मैं ये काम कर लूँ, मैं पैसे हासिल कर लूँ, मैं इस तरह कर लूँ। उस वजह से आके ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर है। इसके लिए है कि हमें बर्दाश्त का मादा हमें जो है ना ये होना चाहिए हर बंदे में। अगर कोई बात एक दूसरे से हो जाती है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। कोई एक दूसरे को गलत बात कह देता है तो उसको इग्नोर करना चाहिए और ख़ुद उस बंदे के घर जाना चाहिए, क्योंकि वो ख़ुद शर्मिंदा होगा। अगर मेरे से गलती है तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अगर उस बंदे की गलती है तो मुझे, अगर मेरे ऊपर ज़्यादती है तो मैं अगर ख़ुद उनके घर चला जाऊंगा तो वो ख़ुद ब खुद जो है शर्मिंदा होगा और आपस में वो एक सुलह सफाई हो जाएगी। तो इस तरह ये चीज़ें फिर मजबूत होंगी रिश्तों की आपस में। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा या क्यों नहीं हो सकता? ये बस अभी हम लोगों में वही बात है कि बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया। अफवा दरगुजर जो है वो हमारे से निकल गया बिल्कुल। अभी हर बंदा कहता है मैं अपने घर का बस खान हूँ, मलक हूँ, वो अपनी चलाता है, दूसरे की सुनता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको एक दूसरे की बड़े बूढ़ों की बात सुननी चाहिए जो ख़ानदान में है बड़ा, लेकिन अभी ये लोग अभी बहुत कम ही सुनते हैं बड़े बूढ़ों की। अभी ये दौर ऐसा आ गया। मैं सब घर में सबसे बड़ा हूँ और अब पहले ही बता दूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने छोटे बहन भाइयों की शादियाँ करता गया हूँ ना, और इसी तरह से वो अलहदा होते गए। वो उनसे फारग हुआ तो अपने बच्चे शुरू हो गए, उनके वो शादियाँ वगैरह करना शुरू हो गई। तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने सबका साथ दिया है। अब हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ। फिर सबसे बेसिक कमज़ोरी घर के सरबराह की है, जिसकी अपनी बीवी उसके अपने कंट्रोल में नहीं, अपना बेटा उसको अपने कंट्रोल में नहीं, अपनी बहन वो इनको कर दे तो ऐटोमेटिक दुनिया को आपको देख सबक ले लेगी। जब मेरे बच्चे काम नहीं कर, मैं आपको तरबियत कर रहा हूँ, आप कैसे मेरी बात मानोगे? उनको ऐसे बेटा घर से बाहर जाओ, कहीं भी है गाड़ी खड़ी करनी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, साइड पे खड़ी करता है, रुकावट ना हो, तकलीफ ना हो। रिश्तों में जब किसी को मिलो बड़ों को सलाम करो, बड़ों को सलाम करो, छोटे से प्यार करो। जो बहू आती है आपकी, वो आप उसको बेटी बनाए, और बहू की माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो आपको कहे कि बेटा वो आपके माँ बाप है, मैं नहीं हूँ। ससुराल बेटे को बेटा समझे, बेटी को कहें बेटा वो आपका असर घर है, उस घर की तरबियत आपके ज़िम्मे है। उस घर में बच्चा बच्ची जो अफसर है उसकी है, वो उनकी जिम्मेदारी है। आप अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हमारी क्या होगा? और वो बात नहीं है। वो क्यों? हर शख्स जो है ना वो अपने आप को लीडर समझ रहा है कि बस जो मैं कह रहा हूँ ना वो सही है, और जो सामने वाला कह रहा है या मेरे बुजुर्ग कह रहे हैं या मेरे घर वाले कह रहे हैं, मेरे बड़े कह रहे हैं, उनकी बात कोई अहमियत नहीं देती। जब कोई बात को अहमियत नहीं देंगे आप, तो घर का माहौल कैसा अच्छा होगा? जी, आपने जब फरमाया कि छोटी छोटी गलत फहमियों से बड़ी गलत फहमी बन जाती है। अगर जब छोटी हो उसी को उसी टाइम उसी के वालिद से या उसके बड़े से किसी से बताया जाए कि आपके बच्चे की ये गलत फहमी है या गलती की है, तो उसको बुलाकर बैठाकर अगर उसी टाइम उस पर कंट्रोल किया जाए तो वो बड़ी ना हो और मोहब्बतें बढ़ती जाएंगी फिर इंशाल्लाह। तो रिश्ते कैसे बनाना बहुत आसान है, इसको निभाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जी एक साइड से तो नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकता, लाजम है दूसरों तरफ से भी कोई हो तो फिर ही है ना। अब एक करता रहे दूसरा नहीं करेगा, जैसे मैं अपना तजर्बा बारूँगा, मैं तो करता रहा लेकिन मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। इसलिए कि हमें अपनी जो ना इतनी मसरूफियात है कि हम उनसे मेल जोल नहीं रखते। अगर मिलते रहें हमें तो हमें पता हो कि हमें ये हमारा रिश्तेदार है, ये करीबी है। अगर आना जाना जो है इतना कम हो गया है, अगर कोई चला भी जाता है किसी के घर पे तो वो अपने अपने दूसरे मोबाइलों में लगे हुए हैं, हर कोई अपने मसरूफियात में, किसी को कोई पता नहीं किसी का क्या ये जो अपना रिश्ता लग रहा है या क्या रिश्ता है क्या नहीं है। तो इसलिए बड़ों को अभी भी समझाना चाहिए अपने बच्चों को। नहीं सर, अब उतनी नहीं है। इसकी वजह सर बताया ना सर, ये मोबाइल के सोशल मीडिया जो है या है, इस वजह से सर अब से जो मोहब्बत है सर वो पैसों की मोहब्बत है। पास जिसके पास पैसा है उससे लोग सलाम करते हैं, झुक के उसके आगे पीछे चलते हैं। जिसका पैसा नहीं है उसे सर कोई नहीं मिलता है। मजीद के नाज़रीन, इंसान की ज़ात खूबियों और खामियों का मजमूआ है। कोई भी इंसान मुकम्मल और गलतियों से पाक नहीं होता। अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो हर तरह के हालात से समझौता करना सीखिए। दूसरों में खामियां तलाश करते रहने की बजाय अपने अंदर नरमी, सब्र और दूसरों की समझने की कोशिश कीजिए। अपने रिश्तों में गलत फहमियों को जगह न दें। एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की आदत को समझें और उसे कबूल करें। अपनी उलझनें दूर करने के लिए दूसरों को बुरा भला कहना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ भी नहीं। लिहाजा थोड़ा सा सोच समझकर हम जिंदगी को खूबसूरत और पुरइत्माद
बना सकते हैं। अल्लाह पाक हमें रिश्तों की कदर करने और फुर्सत के लम्हात में रिश्तों को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फुर्सत के लम्हात है नेमत खुदा की जान लो, कर लो इनमें नेकियां जन्नत का यूं सामान लो।